اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب نے پہلی مرتبہ انتہائی واضح انداز میں امریکہ، اسرائیل اور عالمی طاقتوں کو، انٹرنیشنل یوں سمجھے کہ ڈیلیگیشن کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک فلسطینی ریاست کی ضمانت تحریری اور ناقابل واپسی نہ ہو۔ سعودی ولی عہد نے آج دل خوش کر دیا ہے۔ دیکھیے، میں اکثر سعودی حکومت کی کھنچائی بھی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ جب وہ بدماشی کرتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس وقت میں تعریف کے طور پر کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس میں بھی بہت دیر ہو گئی، لیکن بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، مگر ٹھیک ہے، دیر آیت درست آیت۔ مگر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ کو اور تمام عالمی طاقتوں کو یہ کلیئر طور سے پیغام دے دیا کہ جب تک فلسطین کو تحریری طور پر ضمانت نہ دے دی جائے ریاست کی، تب تک کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسرائیل سے تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی نارملائزیشن ایگریمنٹ کی بنیاد صرف اور صرف فلسطینی ریاست کے لیے ایک قابل اعتبار، ناقابل واپسی اور وقت سے مشروط راستہ ہونا چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پس پردہ ہونے والی حالیہ ملاقاتوں میں امریکی صدر ٹرمپ کو بتایا کہ وہ ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تبھی جب اسرائیل 2 ریاستی حل کا عملی نقشہ پیش کرے، تحریری طور پر فلسطین کو ریاست ہونے کی ضمانت تحریری طور پر دے، کیونکہ اسرائیل کی غداری، مکاری، اسرائیل کا آتنک، اسرائیل کا جھوٹ عیاں ہے۔ ابھی سیز فائر اور جنگ بندی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بمباری کی، کئی سول سٹیزنز، شہریوں کو، مسلمانوں کو شہید کیا، بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا۔ تو اسرائیل کے خون میں جس طریقے سے بے وفائی ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جس طریقے سے اسرائیل میں مکرنے کا انداز ہے اور پلٹنے کا انداز ہے، اس کو لے کر باقاعدہ ولی عہد، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کلیئر طور سے کہا کہ جب تک فلسطین کو تحریری طور پر ریاست کی ضمانت نہیں دی جاتی، اسرائیل سے تعلقات بحال نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت امریکہ کے ایک شہر
डेयरबोर्न से आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के इस शहर डेयरबोर्न में कुरान जलाने की नापाक शैतानी कोशिश की गई। एंटी इस्लाम मुजाहिरीन और मुसलमानों में झड़प भी हुई, तसादुम के वाकयात भी हुए हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है। यानी एंटी इस्लाम कारकुन जैक लैंग ने कुरान पर बाकायदा हैकन का टुकड़ा भी मारा और मंगल के रोज अमेरिकी रियासत मिशिगन के शहर डेयरबोर्ग में एंटी इस्लाम मुजाहिरीन जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने और मुस्लिम हामी अफराद के दरमियान इस मामले को लेकर कुरान को जलाने की कोशिश को लेकर बाकायदा झड़प भी हुई, जिसके नतीजे से में पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात करना पड़ा। डेयरबोर्न जो मुल्क में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले शहरों में शुमार होता है, हालिया दिनों में उन कारकुनों का निशाना बुना हुआ है जो दावा करते हैं कि यह शहर शरीयत के कानून के तहत चलाया जा रहा है। तसादुम का आगाज उस वक्त हुआ जब जैक लैंग जो 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हमले में भी शरीक था, मिशिगन वहां पहुंचा और कुरान को जलाने की इसने नापाक शैतानी कोशिश की, जिसके बाद फिर बाकायदा ऐसी झड़प हुई कि वहां पर पुलिस तैनात करनी पड़ी। यानी यह खबर बता रही है कि अमेरिका में भी बाकायदा जैसे हमारे भारत में कुछ टोला है, शैतानी टोला है जो हर वक्त इस्लाम, मुसलमान, कुरान के खिलाफ बोलता रहता है और माहौल खराब करता है, तो ऐसा ही नापाक टोला वहां पर भी मौजूद है जो अमेरिका में भी बाकायदा माहौल को खराब कर रहा है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खबर है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हो चुका है। जी, मॉस्को में शुरू हो चुका है और पुतिन से भी मुलाकात की हमारे वजीर खारिजा जयशंकर जी ने। पुतिन से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान हमारे वजीर खारिजा जयशंकर जी ने दहशत गर्दी के जो खतरात मंडला रहे हैं इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि ये बड़ी डेंजर चीज़ है जो मुल्क के लिए, दुनिया के अमन के लिए खतरनाक चीज़ है। दहशत गर्दी का पनपना, दहशत गर्दी का बढ़ना, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने पुतिन से कही। और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करते हुए हमारे प्यारे प्यारे लाडले चहीते वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी का पैगाम भी पुतिन को पहुंचाया। बड़ा अच्छा लगा। मेरा ख्याल पुतिन ने उधर से जयशंकर जी को बोलना चाहिए कि मोदी जी को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि आपके भारत में भी अल्पसंख्यक पर काफ़ी जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा मदारिस, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों पर, उनकी दुकानों पर, उनके मकानों पर, मस्जिदों पर, उनके मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और बाकायदा दाढ़ी टोपी देखकर मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर सदर पुतिन जी पीएम मोदी को पैगाम पहुंचाए वजीर खारिजा जयशंकर जी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी भी लोग सोशल मीडिया पर डिमांड कर रहे हैं कि वजीर खारिजा इधर का हमारे वजीर आजम का पैगाम पुतिन को पहुंचा रहे हैं, तो पुतिन ने भी वजीर खारिजा के थ्रू मोदी जी को बताना चाहिए कि रशिया में भी ये खबरें आ रही है कि आपके मुल्क में बाकायदा अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है। आइनादिन बड़ी खबर आ रही है गजा के हालात को लेकर। जी हां, गजा में इजराइल का आतंक जारी है। सीज फायर, रोजाना मैं ये बता रहा हूं कि सीज फायर और जंगबंदी का एग्रीमेंट मुआहदा होने के बाद भी इजराइल गद्दारी कर रहा है, खिलाफ वर्जियां कर रहा है सीज फायर की। और अब जनाब गजा में 280 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 700 के करीब फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। यूरोपीय इत्तेहाद गजा की और फ्रांसिस का अल्बानीज का भी बड़ा बयान आया। फ्रांसिस का अल्बानीज का भी बयान खुलकर आया है। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ की इंसानी हुकूक के मुकर्ररा वो नुमाइंदे हैं फ़लस्तीन के लिए। उन्होंने भी कहा है कि यूरोपीय इत्तेहाद गजा में जो नस्ल कुशी हो रही है, यानी जो फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है गजा में, यूरोपीय इत्तेहाद इससे चश्मपोशी कर रहा है, यानी नजर बचा रहा है। सब मालूम है, लेकिन ये सारे मुजरिम, ये सारे
मुजरिम खामोश है और गजा में होने वाले कत्ल को देखकर, मासूम बच्चों के कत्ल को देखकर, औरतों के कत्ल को देखकर भी इजराइल के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि इजराइल रोजाना वहां पर आतंक का नंगा नाच खेल रहा है। गुज़िश्ता कल खान यूनिस में भी इजरायली आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक फलस्तीनी कल भी शहीद हुआ है और कई फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब ने अभी वाशिंगटन गए हैं और ट्रंप चाचा से मुलाकात हो रही है। और पहली मैंने खबर आपको बताया कि दिल खुश कर दिया सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कि बाकायदा फ़लस्तीन के ताल्लुक से क्लियर पैगाम दे दिया कि जब तक कि फ़लस्तीन एक रियासत के तौर पर कायम नहीं किया जाता, तहरीरी तौर पर उससे रियासत मंजूर नहीं किया जाता, तब तक कि इजराइल से हम ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। अच्छी खबर थी, मैंने शुक्रिया अदा किया। अब दूसरी खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से यानी ट्रंप से 142 अरब डॉलर 142 अरब डॉलर असलहा खरीदेगा सऊदी अरब अमेरिका से, ट्रंप से, ऐसा ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि वाशिंगटन और रियाद यानी सऊदी के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे यानी डिफेंस के एग्रीमेंट पर दस्तखत सिग्नेचर हो चुके हैं और सऊदी अरब 142 अरब डॉलर के असलहे, हथियार वगैरह अमेरिका से खरीदेगा। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि अमेरिका का मेन कारोबार हथियार बनाना, हथियार बेचना, और हथियार बनाएंगे तो उसका बेचना जरूरी है, और हथियार बिकेंगे कब? जब दो मुल्क आपस में लड़ेंगे। इसलिए आप अंदर की बात समझ लो कि दो मुल्कों को लड़वाने का काम, तेल डालने का काम, जंग भड़काने का काम कौन कर सकता है या कौन करता है? मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट